So we are going to start our chapter, our first chapter. So I'm writing here first chapter. And what is the name of first chapter? Laws of motion. Law of motion. Laws of motion. Laws of motion. ठीक है. अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मोशन क्या होता है. ठीक है. So what is motion? सफल. What is motion? हाँ. So when an object changes its place with respect to the time or and with surrounding, then Yes, it, it's called it as is motion. called as Good. Okay, so motion की reference सबसे पहले हम लिखेंगे. When an object changes its position with respect to time and surrounding. Is called as motion. ठीक है. अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और आपको बताना है कि इसमें मोशन होगा या नहीं होगा. ठीक है. सो फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर लुमेश. लुमेश आप हो यहाँ. लुमेश. अक्षर. Yes, sir. द फ्लाइट ऑफ बर्ड. इसमें मोशन है कि नहीं है? Sir, है. बिकॉज व्हेन बर्ड फ्लाइज इट चेंजेस इट्स पोजीशन. जब बर्ड उड़ रही है इसका मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. इसका मतलब उसमें मोशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कृष्णा. कृष्णा आपके लिए क्वेश्चन है. अ स्टेशनरी ट्रेन. तो स्टेशनरी जो ट्रेन है, स्टेशनरी का मतलब होता है जैसे रेलवे स्टेशन में अगर ट्रेन खड़ी है वो चल नहीं रही है उधर, तो उसमें मोशन है या नहीं है? नहीं है सर. ओके यस. तो इसमें मोशन नहीं है तो मैं यहाँ पर क्रॉस कर रहा हूँ. जिसमें है मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पालवी. lives flying through air. Yes, sir, है. Flying through air. हवा के कारण पत्तियों का उड़ना है ना. हवा तूफान आती है और पत्तियां उड़ती है ना पेड़ों की. प्लांट की जो लीव्स है वो फ्लाई होती है ड्यू टू एयर. सो लीव्स में मोशन है या नहीं है? Yes, sir. Yes, Palvi, whether it is in motion or not. Yes, sir, it is in motion. Yes, it is in motion. Correct. Now next question is to Safal. A stone laying on a hill. A stone laying on a hill. no sir. Yes, no, because hill में जो stones होते हैं वो अपने position change नहीं करते हैं, वहीं रहता है ना. So there is no motion. So these are the examples which shows that where the object is in motion or not. Okay, understood? Yes sir. Yes sir. Okay, any doubt here? No sir. No sir. No sir. Sure. Yes sir. Okay, so let's take one more example for Arjun. Arjun, this example is for you. Yes. Okay, so you are traveling with a bus from Gondia to Nagpur. I am writing here Arjun traveling by bus
from Gondia to Nagpur. So here we have motion or not? So Arjun is in motion or not? Arjun. Sir, it is in motion. Yes, it is in motion because bus along with Arjun is going to change the surrounding, okay, with respect to time. गोंदिया से नागपुर जा रहा है तो पोजीशन चेंज हो रही है ना, that means there is a motion. Yes, good. Okay, so I hope you all have understood what is motion and what is not motion. Okay. Okay, sir. Okay, so Lumesh, आप हो यहाँ पे? Are you there? लुमेश, आवाज आ रही है क्या लुमेश? Okay, everyone have to like take a screenshot for that. Then we are going to understand the next concept. So take a screenshot, beta, everyone. Sir, done. Done. Okay. Done, So sir. now, yes, beta. Okay. Done, So sir. I'm कौन लुमेश? Okay, see, I am writing some few important point regarding motion. So देखो, motion जो है वो दो चीजों से रिलेट है. एक तो हो गया टाइम और दूसरा हो गया उसका सराउंडिंग. इसका मतलब जो मोशन है ये कैसा है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. सिर्फ मोशन हो रहा है या नहीं हम ये तब तक नहीं बता सकते जब तक उसका सराउंडिंग चेंज होगा या नहीं, है ना? सो इट इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट. मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. ओके, बिकॉज अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हैं तो मोशन के लिए उसके सराउंडिंग का चेंज होना जरूरी है विथ टाइम. इसका मतलब ये जो मोशन है ये टाइम और सराउंडिंग से रिलेट करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं इट इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट. ओके, बाय लाइक सिर्फ हम ऑब्जेक्ट को देखकर ये नहीं बता सकते whether it is in motion or not. We have to check the surrounding with respect to time. Okay, understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now next concept we are going to understand now displacement and distance. Okay, so next concept we are going to understand is displacement and distance. Displacement and distance. Okay, again take us no, it is your new heading, displacement and distance. So for that we have to understand one example which is given in your textbook. ये आपके textbook का example बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? Suppose we have one girl called Sheetal. Okay, Sheetal and her brother Sheetal and her brother called Prashant. प्रशांत होम. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक घर बना रहा हूँ जो शीतल और प्रशांत का है. तो शीतल और प्रशांत क्या हुए? ब्रदर एंड सिस्टर. ठीक है, तो ये हो गया शीतल और प्रशांत का घर. ओके, शीतल हैव वन फ्रेंड कॉल्ड संगीता. यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर और एक घर है एंड दैट बिलोंग्स टू संगीता एंड संगीता इज शीतल्स फ्रेंड. So this is home for Sangeeta. And शीतल के घर से संगीता के घर के लिए एक रोड बना हुआ है like this. Oh, wait a second, मैं रोड थोड़ा नीचे से ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे यहाँ से. ठीक है, so this is the road. Okay, ये रोड है, हाँ, path. Okay,
and the distance from Sital's home to Sangeeta's home is 500 मीटर. मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 500 मीटर का है. इतना क्लियर? यस सर. अब यहाँ पर एक स्कूल है. ठीक है, स्कूल है, दूर है इसलिए छोटा सा दिख रहा है, अदरवाइज बहुत बड़ा है. ठीक है, ये स्कूल का प्रेयर ग्राउंड और ये फिर पूरा सराउंडिंग है उसका. ठीक है, ओके. सो ये स्कूल है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्कूल. ठीक है. अब what Sheetal's doing every day, she goes to Sangeeta's home and from Sangeeta's home they together go to school every day. And this is the road from Sangeeta's house to school. So again, let me draw the road. Okay, so this is the road from Sangeeta's home to school and its distance is 1200 meter. 1200 meter. So suppose this is the path A. Path A. This is path B. Okay, and you know Prashant used to go school directly from his home to the school, from here directly. Because he is not the friend of Sangeeta, so he used to go school alone from his home itself. And the distance from Sheetal and Prashant's home to school is 1300 meter. It is 1300 meter of distance. And suppose this is the path C. This is the path C. Now understood, beta? अब देखो रोज क्या कर रही है शीतल. एवरी डे यूज्ड टू विजिट हर फ्रेंड संगीता एंड संगीता के साथ देन दे टुगेदर गो टू स्कूल. बट प्रशांत जो है, प्रशांत ही यूज्ड टू मूव अलोन फ्रॉम हिज होम टू स्कूल डायरेक्टली. मींस प्रशांत इज ट्रेवलिंग ओनली 1300 मीटर ऑफ डिस्टेंस एवरी डे. बट शीतल की अगर हम बात करेंगे तो शीतल ट्रेवल्स फर्स्ट 500 मीटर फ्रॉम पाथ ए एंड फ्रॉम 1200 मीटर फ्रॉम पाथ बी. हाँ या ना? Yes sir. Okay. Sir. Yes, sir. Yes. So first I'm going to explain you what is the total distance covered by Sheetal and the shortest distance from Sheetal's home to school is. Okay. So the total distance travel, the total distance traveled by शीतल. सर ये डेफिनेशन है क्या? नो, ये तो हम डायग्राम को समझ रहे हैं. यस सर. The total distance traveled by Sheetal from path A, देखो path A as well as path B and path B equals to कितना हो जाएगा? 500 मीटर प्लस 1200 मीटर, टोटल हो जाएगा 1700 मीटर. Yes, so this is the total distance traveled by Sangeeta, no Sheetal. Now the shortest distance की बात कर रहे हैं. The shortest distance traveled by no, the shortest distance from, इसको erase कर रहा हूं मैं. So the shortest distance from Sheetal's home to school, shortest distance कितना है? Only 1300 मीटर. So ये हो जाएगा 1300 मीटर. तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हम इसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ वो कवर कर रही है उसको बोलते हैं डिस्टेंस. Distance. यस.
ठीक है, अब हम लिखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। ओके, इतना समझ में आया सभी को? पल्लवी, Yes. Yes, sir. sir. everyone have understood? Yes, sir. What about you, Lumesh? Understood, beta? Lumesh, Akshar, Akshar, Yes, sir. understood na? Yes. Okay. So I'm going to write the definition of distance first. So distance. So what is distance? The actual path. The actual path. अब यहाँ पर हम शीतल, संगीता, प्रशांत नहीं लेंगे, हम लेंगे ऑब्जेक्ट. The actual path covered by या traveled by an object from initial Another point. No, इतना लिख दें ऑब्जेक्ट ओनली, तो ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं. The actual path traveled by an object in a time t. In a time t. In a time or in a given time लिखेंगे. In a given time. Okay, is called as distance. Okay, is called as distance. Now I am going to write the displacement. So क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. The shortest distance between initial point, जहां से वो जर्नी स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जहां पर वो अपनी जर्नी फिनिश करते हैं उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट. is called as displacement. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस में अगर हमने इन अ गिवन टाइम नहीं भी लिखा ना तो भी चलता है, ये वाला पोर्शन नहीं लिखा तो भी चलता है. आप डायरेक्ट अगर लिखे ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, इतना लिख सकते हैं. तो ये जो बॉक्स में वो एक्स्ट्रा का हो गया, नहीं भी लिखे तो भी चलता है. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन. Sir, done. एवरीवन डन? Yes, sir. ओके, एनी डाउट हियर? Yes, sir. पक्का? कोई डाउट नहीं किसी को भी? ओके. किसी का माइक ना बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, so you can mute your mic. I think कृष्णा है ना? No, sir. तो किसका म्यूट? ओके ओके, ठीक है ठीक है, अभी सब क्लियर है. ओके, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Okay, now we are going to understand the next concept. Okay, so I am taking another path. सपोज ये एक पाथ है. ठीक है, ये एक पाथ है और हमने यहाँ पर एक रास्ता दे दिया. एक रास्ता ऐसा आया और ये यहाँ से ऐसा चले गया राउंड.
ठीक है। अब सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर पहुंच गया कौन, कृष्णा। अब कृष्णा को ना रोज मॉर्निंग वॉक करने की आदत है, मॉर्निंग वॉक। सो कृष्णा गया यहाँ से, और यहाँ से पूरा रास्ता ट्रेवल करके ही रीच्ड टू द सेम पोजीशन, वो यहीं पर आ गया। देखो उसने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, बट डिस्प्लेसमेंट देखो, हमने क्या बोला था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। सपोज वो ए से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, इतना घूम फिर के वापस ए पर आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर होगा क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा 0। हाँ या ना, सर्कुलर पाथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, और डिस्टेंस कितना होगा, इस सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस के बराबर, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2πr। तो 2πr में अगर रेडियस की वैल्यू हम पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7, या फिर इसी को 3.14 बोलते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम प्लेस करेंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, क्योंकि जो जहां से चलना स्टार्ट कर रहा है और वहीं पर आकर वो पहुंच जाता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कांट बी 0। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया? ओके ओके ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट नहीं, हम लिखेंगे पहले डिस्टेंस का। डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है। सेकंड कंडीशन, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सपोज अगर हमारे पास कोई रास्ता है, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, यहाँ पे कोई डायरेक्शन, कोई मोड़ वोड़, ऐसा टर्निंग कुछ भी नहीं है, तो इस कंडीशन में यहाँ से ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया, और सपोज ये जो डिस्टेंस है ये है 5 किलोमीटर का, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 5 किलोमीटर का। सो यहाँ से यहाँ पर पहुंचा, तो इस कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रहा है, कैसा, स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर मोशन कर रहा है, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। हाँ या ना एवरीवन? अरे यार टाइम, हाँ टाइम, सब समझ में आ रहा है कि बेटा? यस सर। मीन यस सर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग विद स्ट्रेट लाइन पाथ। है ना? यस सर। हाँ, तो हमको पॉइंट लिखना पड़ेगा। सो बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बिकम्स इक्वल। सो आंसर है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग विद स्ट्रेट लाइन पाथ। एकदम सिंपल। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट ना पॉइंट निकल रहा है बेटा, बहुत ना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर पूछ लिया कि एट व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल, तो आंसर क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग विद स्ट्रेट लाइन पाथ। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। सो इसको लिख लेंगे हम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट when an object travels, देखो ट्रेवल्स को हम परफॉर्म मोशन में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं हम ट्रेवल ही लिख। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्रेवल्स ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर परफॉर्म मोशन ऐसा भी लिख सकते हैं। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स along with एक मिनट, मैथ्स सर का कॉल आ रहा है, along with स्ट्रेट लाइन पाथ। हाँ सर, नहीं नहीं शुरू है, लैपटॉप नहीं, मैं बुधनी क्लास रहेगी। हाँ, आप इधर आओगे बोलेंगे।
एक मिनट में उस बच्चे को दूसरा टाइम होता है कि मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ. When an object travels along with straight line path is called as when an object travels along with straight line path is called as what? No, it's not. It's called as then. Condition है ना? Straight line path then distance and displacement becomes equal. Very important point. क्या हो जाएगा? When an object travels along with straight line path then तब distance और displacement equal होगा. ये 3 पॉइंट को अंडरलाइन क्यों? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे? when an object travels along with straight line path. समझ में आया बेटा? Okay, so take a screenshot for that. Done? Done. No, sir. Done now? Yes, sir. sir. Okay, any question beta here? Any question? No, sir. Safal, Akshar, No, sir. Lumesh, anybody, any question? Krishna, No, sir. क्वेश्चन करोगे तो मजा आता है. ओके, सो मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाता हूँ. इट इज फ्रॉम योर बुक. ओके, वेट अ सेकंड, लेट मी पुट दैट एक्टिविटी ओवर हियर. This 9C, this 9 science 9. Okay, मैं यहाँ पर एक फोटो लेकर आ रहा हूँ फ्रॉम द फाइल एंड दिस 9C. ये पिक्चर दिख रहा है सबको क्लियर? हाँ जी. Yes, sir. Yes. Yes, sir. देखो Yes, क्या sir. बोल रहा है इस पिक्चर में. एवरी मॉर्निंग सोराली वॉक्स अराउंड ऑफ एज ऑफ अ सर्कुलर पाथ. देखो ये सर्कुलर पाथ है, ये दिख रहा है यहाँ पर. ये जो पाथ ये एक्चुअल में सर्कुलर पाथ है, यानी सर्कल वाला पाथ. ठीक है, ये वाला सर्कुलर पाथ है, ये वाला. ठीक है. फिर हैविंग, इसकी रेडियस है 100 मीटर. मींस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 100 मीटर. एज शोन इन द फिगर, if she start from point A and takes one round, how much distance? Okay, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी जब वो A से स्टार्ट करेगी और A तक आएगी? तो ये होता है एक्चुअल में 2 पाई r के बराबर. सो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू r. रेडियस कितना दिया हुआ है? 100. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 314 है ना. देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो पॉइंट हट जाएगा. तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 2 4 आर 8, 2 1 is 2 and 2 3 are 6. तो वो 628 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. ठीक है. अब पूछ रहा है she walked and what is her displacement. बट डिस्प्लेसमेंट जहां से स्टार्ट कर रही है वहीं पर आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0. तो देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 628 मीटर का, बट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0. हाँ या ना? Displacement Yes, is 0 and distance is 628 मीटर. ओके, सेकंड दिया है कार का. डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस. सी, अब कार क्या हो रहा है? और कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी से स्टार्ट कर रही है एंड गोस टू पॉइंट क्यू पर आ गई. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 360 मीटर जाने में लग गया.
ओके फिर क्या पूछ रहा है, एंड रिटर्न टू द पॉइंट P, और वापस पॉइंट P पर आ गए यहीं पर। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 360 प्लस 360, दो बार, एक बार गई एक बार आई, तो दो बार डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। 72, 720. हाँ 720, यस। किसने बोला है? Krishna. यस 720 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कौन? कार, ठीक है। बट सो चलो डिस्टेंस तो हमारा निकल गया 720, इट इज 720, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? देखो P से स्टार्ट किया, मूव हुआ और वापस P पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट अगेन 0, हाँ या ना? ठीक है, इसलिए हमने जो पॉइंट Yes. लिखे हैं वहां पर हमने लिखे हैं कि डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है वही वाला, इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो गया बट द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इट मे नॉट बी 0, तो वो जरूर नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो डिस्टेंस भी 0 होगा, ये जरूरी नहीं है। So this is all about your activity. Okay, so here we have covered your part called distance and displacement. So by tomorrow we will start speed and velocity. Understood everyone? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. Okay, so take a screenshot for that also.